Welcome to the second video of your chapter Family Similarities. So in the last video we have done the explanation part of this chapter, and in this video we are going to do our book exercise and question answer. So let's start. So first we will start with something to know. So this is exercise A is having MCQ, multiple choice question. First question is the twins who look same are. वो ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल सेम दिखते हैं उनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट इज आइडेंटिकल ट्विंस, सेकेंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस एंड द थर्ड इज फ्रैटर्नल ट्विंस. So the correct answer is identical twins. You can mark out in your book. Second question is family members can have similarities in. Family के जो members होते हैं उनमें similarities होती है किस चीज़ को लेकर? The first option is eating habits, second is voice and C is both. तो जो भी family के members होते हैं इनके eating habits भी similar होती है, उनकी sometime voice भी similar होती है. So the correct answer will be both. See the third question. Sunita Williams is a famous what? A. Sports person, B. Astronaut, C. Singer. So the correct answer is astronaut. Sunita Williams is a famous astronaut. Fourth question. A famous personality who has followed the footstep of his father. वो कौन से फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने फादर के फुटस्टेप को फॉलो किया, मतलब अब उनके फादर के ऑक्यूपेशन को फॉलो किया? फर्स्ट इज सचिन तेंदुलकर, सेकेंड मिल्खा सिंह एंड द थर्ड इज रोहन गवास्कर. सो द करेक्ट आंसर इज रोहन गवास्कर, हु इज द सन ऑफ सुनील गवास्कर. मार्क आउट. So exercise B, fill in the blanks. See the help box. Some words are given. First is action, second grandparents, third is similar, fourth is different and the fifth is resemble. See the first question. Members of a family often dash each other. So family के जो members होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं? वो एक दूसरे से resemble करते हैं. First answer is resemble. Second is many twins look dash but some twins look exactly alike. Alike means एक जैसे. So कुछ twins तो बिल्कुल exactly एक जैसे होते हैं but many twins look different. लेकिन बहुत से ऐसे twins होते हैं जो different दिखते हैं. तो second answer is different. Third is the dash of one family member affects the other members. अब द डैश ऑफ वन फैमिली मेम्बर, किसी भी फैमिली मेम्बर का में अगर किसी मेम्बर ने कुछ एक्शन किया है तो जो भी एक्शन है उसका अफेक्ट दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स है उन तक ज़रूर पहुंचता है. सो द थर्ड आंसर इज एक्शन. ठीक है, द एक्शन ऑफ वन फैमिली मेम्बर अफेक्ट्स द अदर मेम्बर्स. किसी भी फैमिली मेम्बर्स का जो एक्शन है वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी अफेक्ट करता है. Fourth is many children resemble their dash. So many children resemble their grandparents, uncles, aunts or cousins. The fourth answer is grandparents. Fifth question is in some families, ठीक है, कुछ families में the food habits of the members may be dash. जो food habits है members की, जो भी family में members है उनकी जो food habits है may be similar, वो एक जैसी हो सकती है. सो द फिफ्थ वन इज सिमिलर. नाउ सी एक्सरसाइज सी. राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो. फर्स्ट वन इज आइडेंटिकल ट्विंस लुक डिफरेंट. नो, एज इन द चैप्टर में हमने देखा था कि आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो इतने ज़्यादा एक जैसे दिखते हैं कि उनके पेरेंट्स को भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हु इज़ हु. सो द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. So the answer will be F, false. Second question, all family members have a similar voice. क्या सभी family members के similar voice होते हैं? No, it is wrong. ज़रूरी नहीं है कि सबके voice बिल्कुल similar हो, एक जैसे हो. तो second is also false. Third is
इफ़ पेरेंट्स आर टॉल देयर चाइल्ड इज़ बाउंड टू बी टॉल। क्या बोला जा रहा है कि अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो ज़रूरी है कि उनके चाइल्ड जो हैं वो भी लंबे ही होंगे। नो, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स। ज़रूरी नहीं है कि जिनके पेरेंट्स लंबे होंगे वो उनके बच्चे भी श्योर है कि वो लंबे हों, ये रॉन्ग है, इट इज़ फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन, द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स आर नेवर सिमिलर। फैमिली मेम्बर्स की जो लाइक्स है और डिसलाइक्स है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, कभी होती भी है, कभी नहीं भी होती है। तो द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, सो ऑल द आंसर विल बी इन फॉल्स। Now exercise day is question answer. So see the first question answer. List 3 ways in which family members can resemble one another. So you have to write 3 ways, 3 तरीके लिखने हैं. The family members can resemble one another by 3 ways. And that are, first one is color of the skin and hair. Second, shape of nose, forehead, etc. And the third one is height. तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं. चलो, सेकेंड क्वेश्चन इज इन वॉट वेज आर यू सिमिलर टू योर फैमिली मेम्बर्स. तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने फैमिली मेम्बर से कैसे सिमिलर हो. सो द आंसर इज द कलर ऑफ द स्किन, हेयर, हैबिट्स, लाइक्स और डिसलाइक्स. तो आपकी जो स्किन का जो कलर है, हेयर है, हैबिट्स है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, ये सब सिमिलर हैं आपके फैमिली मेम्बर से. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट कन्फ्यूजन कैन बी ट्रीटेड इफ द ट्विन्स आर आइडेंटिकल. तो इन द चैप्टर वी हैव डन व्हाट आर द आइडेंटिकल ट्विन्स. आइडेंटिकल ट्विन्स मीन्स हु आर एग्जैक्ट सेम, है ना. थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बट मोस्टली दे बोथ आर सेम. और इतना ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन है. ठीक है, तो आंसर वी विल राइट इफ़ द ट्विन्स आर आइडेंटिकल. अगर ट्विन्स जो हैं, जो जुड़वा बच्चे हैं, वो अगर आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, द कन्फ्यूज़न ऑफ हु इज़ हु कैन बी ट्रीटेड. क्या होता है, कन्फ्यूज़न ये होता है कि कौन कौन है ना, कौन सा बच्चा कौन है, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डू यू वॉन्ट टू फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ योर पेरेंट्स. क्या आप अपने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन फॉलो करना चाहते हो. मीन्स व्हाट, कि जो आपके पेरेंट्स हैं क्या आप भी वही बनना चाहते हो बड़े होकर. और अगर येस देन यू हैव टू राइट डाउन वाई, क्यों बनना चाहते हो. तो द आंसर विल बी, ऐसे हो सकता है कि ये आंसर आपका डिफरेंट भी हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको फॉलो करना चाहते हो या नहीं. बट अकॉर्डिंग टू मी, येस, आई वॉन्ट टू फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ माई पेरेंट्स बिकॉज आई लाइक इट. ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन फॉलो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे उनका प्रोफेशन अच्छा लगता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डू फैमिली मेम्बर्स शेयर देयर जॉयज टुगेदर. जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो खुशियाँ कैसे एक साथ शेयर करते हैं ना. जॉय मतलब खुशियाँ एक दूसरे के साथ कैसे शेयर करते हैं. एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल. आपको एक एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना है. सो द आंसर इज फैमिली मेम्बर्स आर assembled in one place to celebrate the festivities, to share their joys together, as members are the sources of joy. Now क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स assemble मतलब एक साथ इकट्ठा होना. तो दे assemble in one place, एक जगह पर सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा होते हैं to celebrate the festivities, जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, या कोई स्पेशल ओकेज़न है उसको सेलिब्रेट करने के लिए. क्यों? सो दैट दे कैन शेयर देयर जॉयज टुगेदर, ताकि वो अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ, बांट पाएँ. एज मेम्बर्स आर द सोर्स ऑफ जॉय, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं खुशियों का मेन कारण है ना. सोर्सेज, खुशियों का मेन कारण कौन है, हमारे फैमिली मेम्बर्स. Now as in the question you have seen that you have to give an example. So the example in the chapter you have seen of Sunita Williams, है ना. सुनीता विलियम्स का example दिया हुआ chapter में. Like Sunita Williams relatives in Gujarat were sharing fear and relief, है ना. सुनीता विलियम्स
के जो रिलेटिव थे वो गुजरात में अपनी जो फियर है, डर था जो उनका जब सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी, और जो रिलीफ जब उनके वापस आने पे जो रिलीफ हुआ, जो खुशियाँ हुई, वो सब उनके जो रिलेटिव थे जो गुजरात में रह रहे थे उन्होंने साथ में शेयर किया। नाउ आफ्टर द क्वेश्चन आंसर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस होते हैं जिससे आप कुछ वैल्यू सीखते हो लाइफ के। सो द एग्जाम्पल इज गिवन, खुशी एंड हर सिस्टर अश्मिता आर ऑलवेज फाइटिंग ओवर समथिंग और द अदर। खुशी और उनकी सिस्टर अश्मिता में हमेशा फाइटिंग होती है, किस चीज़ को लेके, कुछ ना कुछ, है ना, समथिंग और अदर, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। नाउ व्हाट हैपन कि देयर फादर ब्रॉट ड्रेसेस फॉर देम, उनके फादर उनके लिए ड्रेसेस लाते हैं। वन वॉज पिंक एंड द अदर वन वॉज ब्लू, एक जो ड्रेस थी वो पिंक कलर की थी और जो दूसरी थी वो ब्लू कलर की थी। बोथ ऑफ देम लाइक्ड ब्लू ड्रेस, है ना, दोनों को कौन सा ड्रेस पसंद आता है, ब्लू ड्रेस पसंद आता है। एंड फॉर दिस, इस चीज़ को लेके दे स्टार्टेड फाइटिंग, ठीक है, इस चीज़ को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सो ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफन क्वारल विथ ईच अदर, ब्रदर और सिस्टर जो भी होते हैं, आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि किसी न किसी बात पे एक दूसरे से उनमें क्या होती है, लड़ाई हो जाती है। दिस इज़ नोन एज अ सिबलिंग राइवलरी, इसको क्या बोलते हैं, सिबलिंग राइवलरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, दिस पैराग्राफ, यू हैव टू answer the following questions given. So the first question is, do you have argument with your brother or sister? Beta, this is a value based question and you have to answer according to your life, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग आर्ग्यूमेंट, अगर आपको आपके अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ आर्ग्यूमेंट होती है, आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है बहस होना या लड़ाई होना, तो इज़ इट येस और नो, दैट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर लाइफ। सेकेंड वन इज़, लिस्ट 2 issues on which you have disagreement with your siblings. अच्छा, इसमें आंसर यू हैव टू राइट डाउन 2 issue, 2 पॉइंट्स लिखने हैं जिसमें आपको अपने भाई या बहन के साथ क्या हो जाए, डिसअग्रीमेंट, मतलब किसी चीज़ को लेके बहस हो रही है, दोनों में से कोई अग्री नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है उस चीज़ को। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया है तो यू हैव टू राइट डाउन 2 पॉइंट्स हियर। आफ्टर दैट, इन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू सॉल्व प्रॉब्लम्स विथ योर सिबलिंग्स। अब इसमें आपको बताना है कि अगर कभी आपको आपके सिबलिंग्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो आप उसको सॉल्व कैसे करते हो, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। आप अपने मम्मी पापा की हेल्प लेते हो, या कुछ टाइम के बाद आप खुद जाकर सॉरी बोल देते हो, या आपके सिबलिंग्स आके आपको सॉरी बोल देते हैं। वॉट एवर सिचुएशन इज़ देयर, दैट यू हैव टू राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज़, हाउ डू योर पेरेंट्स गाइड यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें लिखना है आपको कि अगर कभी लड़ाई हो जाती है एंड व्हेन यू हैव टू गो टू द पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स के पास जाते हो तो पेरेंट्स आपको कैसे गाइड करते हैं उस प्रॉब्लम से को शॉर्ट आउट करने में, ये यू हैव टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन द क्वालिटीज दैट आर नीडेड टू हैव गुड रिलेशंस विद अदर। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट आर नीडेड टू हैव गुड रिलेशंस विद अदर, तो मेनी क्वालिटीज आर देयर, है ना। सो यू हैव टू राइट डाउन। So after the question answer, we will see the map skills. So in the last chapter में हमने देखा था कि उसमें एक political map दिया हुआ था जिसमें states भी located थे. So there we have marked. In the second chapter, there is no political map is given. So we will just mark out in other map. So the first we will go through the question. The first question is the state where Sunita Williams relatives lives. So that is Gujarat. है ना? See the map now, and here we have to locate Gujarat. So first we will zoom it. In the first question it is asked where Sunita Williams relative live in India. तो that is Gujarat. तो आपको गुजरात मार्क आउट करना है। हो सकता है आपके स्कूल में आपको मैप मिले, या if you are having a map at your home, you can mark it out. Here is just circle it. Here is Gujarat. Question number 1. You can mark it out. First question, Gujarat. Second question में you have to write down 2 states where your relative live. तो अब भाई जिसके जिसके रिलेटिव जहाँ भी रहते हैं तो 2 states आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क आउट करना है. एंड इन द थर्ड क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड दैट वेयर योर पेरेंट्स वांट्स टू विजिट, है ना, कौन सा स्टेट में आपके पेरेंट्स विजिट करना चाहते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 and 3 दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन. पॉलिटिकल मैप इज़ गिवन.
है ना. यू हैव टू जस्ट पॉइंट आउट द वट एवर स्टेट इज देयर. जो भी स्टेट है आपके रिलेटिव जहाँ रहते हैं उसको मार्क आउट करना है एंड जस्ट राइट डाउन द नंबर्स देयर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज समथिंग टू डू. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू अंडरस्टैंड the role and responsibility of your parents, you will understand the problem they face in bringing up the children. अगर आपको अपने फैमिली मतलब अपने पेरेंट्स का रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनके लाइफ में आप क्या रोल है आपके पेरेंट्स का या उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये आप समझ जाओगे ना तो आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में आने लगेगी. किस तरह की प्रॉब्लम, कि वो क्या फेस करते हैं, है ना, उनको कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है टू ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन. ब्रिंगिंग अप मतलब आपको बड़े करने में या बच्चे को बड़े करने में पेरेंट्स को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो आपको समझ में आ जाएगा. दिस विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर पर्सन. अब ये जब आप समझ जाते हो ना तो आपको एक अच्छा इंसान बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू डिस्कस योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स विथ योर पेरेंट्स. इफ़ येस तो यू विल राइट येस. तो मैं करती हूँ तो आई विल राइट येस हियर. आप क्या करते हो, येस और नो यू हैव टू डू. सेकेंड वन, डू यू फॉलो देयर एडवाइस. जो पेरेंट्स आपको एडवाइस देते हैं, जो सलाह देते हैं, आप मानते हो कि नहीं मानते हो. मानते हो तो येस लिखना है, नहीं मानते हो तो नो लिखना है. थर्ड वन, डू यू शेयर द हाउस होल्ड कोर्स विद देम. वट इज़ द हाउस होल्ड कोर्स. हाउस होल्ड कोर्स कहते हैं घर के काम. ठीक है. तो क्या आप अपने पेरेंट्स के घर के काम में उनकी हेल्प करते हो. इफ़ येस देन यू विल राइट वाई. अगर नहीं करते हो तो राइट ऑनेस्टली नो. चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर क्लोज टू सम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. ठीक है. आप अपने फैमिली में कुछ जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो, बहुत नज़दीक होते हो. आप अपने लाइक फीलिंग्स, अपना दुख, अपना सुख, सब कुछ उनके साथ सबसे पहले शेयर करते हो. यू मे नॉट बी क्लोज टू द अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. और उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो बाकी दूसरे फैमिली मेम्बर से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर अ रीज़न वाई यू डू नॉट लाइक अ फैमिली मेम्बर. क्या आपके फैमिली मेम्बर में कोई एक ऐसा मेम्बर है जिसको आप पसंद नहीं करते हो, और अगर नहीं करते हो तो यू हैव टू राइट द रीज़न. अब बेटा इसका आंसर हम नहीं लिख सकते हैं बिकॉज हर आंसर चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करेगा. सो यू हैव टू राइट योर एक्सपीरियंस हियर, कि कोई वो रीज़न लिखना है क्यों आप उस फैमिली मेम्बर को लाइक नहीं करते हो. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज, हैज़ दैट पर्सन ट्राई टू हार्म यू इन एनी वे. क्या वो पर्सन जिसको आप पसंद नहीं करते हो, क्या उसने आपको कभी हार्म करने की कोशिश की. हार्म का मतलब आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. येस और नो. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, हैव यू डिस्कस्ड इट विथ योर पेरेंट्स. अगर कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसको आप पसंद नहीं करते हो या आपको उसने कभी हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, तो क्या आपने कभी भी अपने पेरेंट्स से उसके बारे में डिस्कस किया है. येस और नो, राइट डाउन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन. सो इट्स अ very, I think, personal questions are there, so you have to do family information. It is asked. So the first one is, so here just I am going to explain the questions. Answer you have to write by your own. Who is the tallest member in your family. आपके फैमिली में कौन है वो सबसे ज़्यादा टॉल पर्सन, है ना. टॉलेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा लंबा इंसान कौन है आपके फैमिली मेम्बर में. यू हैव टू राइट द नेम हियर. सेकेंड, व्हाट इज़ हिज और हर हाइट इन फीट एंड इंचेस. वो जो टॉलेस्ट मेंबर है आपके फैमिली का, उसकी हाइट क्या है, फीट कितना फीट या कितने इंचेस है, यू हैव टू राइट. थर्ड, व्हाट इज़ हिज और हर हाइट इन सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ द कॉलम में आपको फीट और इंचेस में लिखने हैं, सेकेंड में आपको सेंटीमीटर में लिखना है. फोर्थ वन, व्हाट इज़ योर हाइट इन सेंटीमीटर. आपको अपने हाइट को देखना है एंड यू हैव टू राइट द सेंटीमीटर, आपकी हाइट क्या है. ई, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर हाइट एंड योर मदर्स हाइट. आपकी हाइट और आपके मदर की हाइट में कितना डिफरेंस है ना, दोनों के हाइट में कितना डिफरेंस है. एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड. आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी हाइट क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना है. एंड कम टू द एंड, द लास्ट क्वेश्चन, थैंक्स गिविंग. मेक अ कार्ड फॉर अ फैमिली मेम्बर. एक आपको सुंदर सा कार्ड बनाना है. whom you want to thanks. Mention the reason for your gratitude. So you have to make a card
एक फैमिली मेम्बर के लिए कार्ड बनाना है, किसके लिए बनाना है? जिसको आप थैंक्स बोलना चाहते हो। एंड उस कार्ड के अंदर में आपको रीज़न भी लिखना है कि आप उनको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट या इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हो। So book exercise and the second video of this chapter is over. If there is any doubt or any suggestion, you can write down in the comment section. And thanks for watching. Take care. Bye.